आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी स्टोरी थी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन कॉस बन जा रहा था और कॉस, टैन कॉट बन रहा था और कॉट, और सेक कोसेक बन रहा था और कोसेक। ये कहां पे देख रहे थे आप? जब 90 था, 90 प्लस माइनस थीटा पे, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ये कन्वर्जन हो रही थी। लेकिन जहां पे आपने 180 देखा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या माइनस थीटा। बट बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Now let's say this is theta in radian and this is r and this is L. Can I say L is equal to? कैसे? Simple, I know L is theta in degree by 360 degree into 2 pi into r, right? And this is basically the conversion in radian. Let's say आपको करना है, you have $5, right? You have $5. Now you want to convert into Indian currency. What you are going to do? अभी पता चला कि 60 rupees is equal to $1. So what you are going to say? Because this is actually 1 unit. This is actually 1 unit. Now you can simply cut it off, and you can say, clear? And similarly, you can say theta in degree upon 2 pi by 360 degree, which is actually 1, which will give you degree cut जाएगा and things will turn out to be a radian, right? So you know L is r theta. Okay. Now my question comes. If I say this is 2 centimeter, this is 2 centimeter and this is 5 centimeter. Okay. I want to know the area of this shaded portion. क्या होगा बताओ? हाँ? Wrong. ये तो hardly 5-second question. The answer is 5. क्या होता है एरिया? एरिया जो होता है सर वो होता है हाफ एल आर, एंड सिंपल इट इज half to 5. But the question is why the area is half LR. I don't know what is the area of half LR, but since I have been studying from class 10th and it says area of a sector is theta in degree by 360 degree into pi r square. I can write this as 2 into 180 degree, and I can say everything as radian. So I can say half theta radian into r square, which I can write
which I can write, which I can say. Understood? So you can also say that the area is half r square theta radian, right? मान लो ये 30 डिग्री है और 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ क्या होगा? What will be the L? क्या होगा? Simple. Pi by 6 into 3. Don't say 30 into 3. है ना? R theta मत कर दो, R theta radian करो. तो theta radian क्या हो गया? Pi by 6, that is pi by 2. So answer is pi by 2. तुम क्या बोल रही थी? Don't convert pi. Pi को pi में छोड़ो, जब तक कोई बोले ना convert करने को, right? Pi होता क्या है वैसे? What is pi? नहीं, what is the definition of pi? It's an irrational number. What does the definition of pi? What is pi? What is the definition of pi? Nobody knows. Strange. Nobody knows what is the definition of pi. How many of you have seen the movie Life of Pi? In that movie, there is the definition. How many of you have seen Life of Pi? Only you? Only 2? Only 3? You remember the definition of pi? What is it? You remember the school days, initial stories, start of the scene? And he was fed up of his name. And then he recoined his name. What he recoined? He recoined from Piston to pi. And in his first day, in his first class, he went to the board. What did he do? He drew a circle. Without asking any teacher, he just went to the board, he drew a circle and then drew a diameter. And he said, I am the ratio of circumference of a circle and diameter of circle, I am pi. That is the definition of pi. It's a ratio of circumference of a circle and diameter of a circle. And he also said that I am irrational. Basically, pi is an irrational number. You remember the same day, the last class, mathematics teacher class, he was writing the value of pi, filled up 5-6 boards. His mathematics teacher brought a big thick book of value of pi, and he was surprised to see that he was writing all right. So basically, it was non-terminating and non-repeating. So even if you go to your place, if you Google it, value of pi, the screen will fill up, and it will be non-terminating and non-repeating. So pi is basically an irrational number, which is basically the ratio of the circumference of a circle and diameter of a circle. Okay, when you see movie, you try to grasp things. Now coming back to the Cartesian system, in which we have already learned how to predict the sign, right? So just finish this task. Tell me,
बताओ, how can you predict sine 1000 degree, positive or negative? Why? 1000 is in which quadrant? Fourth quadrant, so it would be a negative thing. Tan 2000 degree, how? 1800 degree is waste, so we are left with 200 degree. Where is 200 degree? 200 degree. Third quadrant means sine is negative, cos is negative. Negative on negative is? So tan would be sec 22 pi by 3. Now 2 pi is equivalent to 360 degree. When I say 22 pi by 3, basically it becomes 6 pi plus 4 pi by 3. 6 pi is a waste for me. And what is 4 pi by 3? 4 by 3, and that is basically pi plus pi by 3. Pi plus pi by 3. So pi is basically 180 degrees. So first quadrant, second quadrant crossed, and pi by 3 is in third quadrant. Third quadrant means cos would be negative, so sec would be negative. Reciprocal है ना? Clear? Now what about this? Cot 275 degree. Which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant में cos क्या होता है? Positive. Sin? तो cot क्या होगा? Now cosec minus 4000 degree. Right. Minus means headache, right? So मुश्किल है ऐसे करके जाना. तो ऑब्वियसली जा सकते हो 360 720 ऐसे करके जाओगे वापस, फिर 3600 3960, मतलब सर दर्द कर रहा है, राइट? मेरा भी सर दर्द कर रहा है. If it would have been 4000 degree, I would have easily done it. माइनस 4000 डिग्री में बहुत सारे दिमाग चलने लगे, बहुत सारे ऑपरेशन स्टार्ट हो गए दिमाग में, राइट? जिसकी वजह से बहुत सारी खलबली मच गई, जिसकी वजह से गलती होने की चांसेस बढ़ गई, राइट? ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन क्यों तक परेशान होना जब तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन है? तो मतलब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू हैंडल नेगेटिव एंगल्स. सो व्हाट इज, हमने अब तक डिफाइन कर दिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा. तो बेसिकली मैं सिर्फ साइन कॉस की बात करूंगा, अंडरस्टूड है, सारे बात डिस्कस हो गया, राइट? तो हमने ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन कर लिया था. नाउ लेट्स डिफाइन साइन माइनस थीटा, साइन कॉस, कॉस माइनस थीटा, और क्या हो रहा है, एंड देन वी कैन डेवलप द बैग हाउ टू हैंडल माइनस थीटा. सो लेट्स डू इट. Now if you observe, circle है ना? If I call this as theta, what would be minus theta? This would be minus theta because this is plus theta, right? Clear? This is x comma y, so what would be this? X comma minus y, not minus x, है ना? X comma, because it's symmetrical, these two becomes the same story. This length is minus y and this length is x, right? तुम्हें पता है साइन किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डिनेट पे. और कॉस किस पे डिपेंड करता है? एब्सिसा पे. सो तुमने ऑलरेडी बता रखा है साइन थीटा इज बेसिकली y by r and cos theta is x by r. now if you say what is sin minus theta, you will say minus y by, and what is cos minus theta? X by r. कोई फर्क है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? It's behaving like x square. It's behaving like X square. क्या होता था? प्लस दो या माइनस दो, फर्क नहीं पड़ता है. इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक मॉड एक्स. तो इस टाइप के फंक्शन का मैंने इवन ऑड बताया था लास्ट टाइम. ओके,
So you know what is even function now? So basically cos becomes a even function. When I say a function is even, क्या पता होता है उसके symmetry के बारे में? Symmetrically, what can I say about even function? Whatever you see on the right, the same is on the left. It's symmetrical about By y axis, right? Whatever you see on the right, you will see the same thing on the left, right? तो अभी जो भी टर्म्स आते हैं इस टाइप के, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, डोमेन, रेंज, ये सब पे एक स्टार मार्क्स लगा के रखा करो. क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पुरानी हैं जो आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आने वाले हैं, जिनसे आपकी दोस्ती होने वाली है, लेकिन अभी दुश्मन ही लग रहे हैं. ठीक है, तो दोस्ती करना ज़रूरी है. नहीं करोगे तो परेशान रहोगे. तो इन लोगों से थोड़ी दोस्ती करनी होगी, राइट? तो इन लोगों को स्टार मार्क्स लगेंगे कि ये सब नए टर्म्स आ रहे हैं हमारे लाइफ में. ठीक है, इसको जान लो, इसका पहले नाम सीखो, नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर फाइनली सबकी स्टोरी एक साथ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी. क्लियर? तो ऑड फंक्शन है दोस्त फंक्शन जिसमें आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है. ऑड फंक्शन क्या होता है? जब आप x को माइनस से रिप्लेस करते हो तो सीधे माइनस हो जाता है. फर्क वैल्यू मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन पे फर्क पड़ जाता है. बहुत ऐसा केस होगा कि अलग ही कुछ हो गया, तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, तो तीन केस होगा, या तो बंदा इवन है, या तो ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है. ठीक है, क्लियर? तो आपको ये पता चल गया कि योर cos थीटा एंड cos माइनस थीटा इज सेम. इसका मतलब y इज इक्वल टू cos थीटा इज अ इवन फंक्शन. ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि cos माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू cos थीटा, नो फर्क है ना. व्हाट अबाउट sin माइनस थीटा? माइनस आ गया ना इसके साथ, सो आई कैन से sin माइनस थीटा इज एग्जैक्टली माइनस हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन. सो y इज इक्वल टू sin x इज ऑड फंक्शन एंड y इज इक्वल टू cos x इज इवन फंक्शन. ऑड फंक्शन समझ लो, x क्यूब ऑड फंक्शन है क्या? y इज इक्वल टू x क्यूब. यस, 5 डालो या माइनस 5 डालो, 5 डालोगे 125 आएगा, माइनस 5 डालोगे. तो जो ऑड फंक्शन होते हैं उसके पे स्टार मार्क्स लगा के ये लिख दो, दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. क्या कहते हैं इसे हम? अब इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? इसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन. जैसे तुम्हें याद आएगा, अगर तुम्हें याद हो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा था और x प्लस वाई लाइन ये है. देखो दोनों का मिरर इमेज है क्या? है ना मिरर इमेज? तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट x प्लस वाई. ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है ना. अंडरस्टूड? तो ऑड फंक्शन का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, उसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? f ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ एफ थीटा. क्लियर? तो उसी तरीके से हमने माइनस थीटा को हैंडल करना सीख लिया. तो अब जब भी निगेटिव एंगल्स आएगा हमें उल्टा घूमने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको हैंडल करना सीख चुके हैं. चलो, जब कॉस के लिए लिख लिया है तो टैन के लिए भी लिख दो. टैन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टैन थीटा, क्योंकि साइन तो नेगेटिव रह जाएगा ना. और कॉट माइनस थीटा भी, और सेक माइनस थीटा क्या होगा? क्योंकि कॉस का है कहानी भाई है सेक, तो सेक क्या हो गया? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. ओनली कॉस एंड सेक इज इवन फंक्शन, रेस्ट ऑल आर ऑड फंक्शन. कोसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा. तो इसमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है, ट्रिग्नोमेट्री में एक भी आइडेंटिटी याद नहीं करनी है. अंडरस्टूड? सारी आइडेंटिटी नेचुरलाइज करनी है, प्रूफ करनी है और नेचुरल वे में उसको हैंडल करना है. अब आप लोग पढ़ते होगे 90 माइनस थीटा, फिर आप लोग पढ़ते होगे 90 प्लस थीटा.
फिर आप लोग पढ़ते होगे 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद पढ़ते होगे 180 प्लस थीटा, और फिर ये पांचों टेबल याद करते होगे, या कैसे भी करके कोई क्वाइन क्या होगा इसको याद करने का तरीका, राइट। फिर हम इन पांचों को एक्चुअली जनरलाइज कर देंगे। तो हम लोग ये 4-5 चीजों को दिमाग में रखेंगे ही नहीं, सिंपल हम लोग सारी चीजों को जनरलाइज कर देंगे। लेकिन पहले हम वो सारे बैग्स बना लेते हैं। तो हमने माइनस थीटा का बैग बना लिया है, 90 माइनस थीटा का तो आपने क्लास 10th में बैग बना लिया था, और उसका प्रूफ सबको पता है ना? पता है ना 90 माइनस थीटा का सबको प्रूफ सबको पता है। बैग साइन 90 माइनस थीटा इज cos theta, cos 90 माइनस थीटा इज sin theta, tan 90 माइनस थीटा इज theta, cot 90 माइनस थीटा इज theta, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अंडरस्टूड? तो इसमें किसी में साइन चेंज नहीं हो रहा है, बस सेक कोसेक बन रहा है, कोसेक सेक बन रहा है, tan cot cot tan sin cos cos sin। तो हमने दो चीज हैंडल कर ली, राइट? 90 माइनस थीटा हैंडल कर लिया और माइनस थीटा हैंडल कर लिया। अच्छा, अब मैंने पूछा था क्या, कोसेक माइनस 4000 डिग्री का आपको साइन बना था। तो जैसे कोसेक माइनस 4000 डिग्री था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 4000 डिग्री। और आप बता सकते हो 4000 डिग्री कहां रहेगा, 3600 तो चला गया, 400 बचा, 400 में 360 चला गया, तो बचा क्या 40। तो कोसेक 40 क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस, सो इट वुड बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। क्लियर? अंडरस्टूड? आसान हो गया ना? ऐसे करने में बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे, सोचना पड़ रहा था, राइट? अब नहीं करने की जरूरत है। अब आ जाओ 90 प्लस थीटा पे। हमने 90 माइनस थीटा हैंडल करना सीख लिया और माइनस थीटा हैंडल करना सीख लिया, तो उसी से ही हम 90 प्लस थीटा बनाते हैं। देखो कैसे, यही तो होता है, यही होता है ना। अच्छा, साइन 90 माइनस का छड़ा क्या होगा, कॉस का छड़ा। 90 माइनस कुछ भी हो वो उलट जाएगा। तो जब मुझे साइन के साथ ये काम करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा। कॉस को फर्क पड़ता है, ठीक है। सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। नाउ व्हाट इज कॉस 90 माइनस अल्फा, sin alpha, साइन को फर्क पड़ता है, minus sin theta, क्लियर? Similarly, you can handle, right? I don't have to go tan, sec, cosec, right? Sin and cos done. You can handle the rest. So we have prepared three bags now. 90 minus theta, 90 plus theta. Now going to 180 degree minus theta. 180 degree. Can I write 180 degree minus theta as 90 plus 90 minus theta? Because I know how to handle 90 minus theta, right? And even I know how to handle 90 plus alpha. What is sin 90 plus alpha? Cos alpha, right? So I can simply write sin 180 degree minus theta as sin 90 plus alpha. What is sin 90 plus alpha? Cos alpha. Cos. And what is cos 90 minus theta? sin theta, Clear? And similarly, cos. What is cos 90 plus alpha? What is cos 90 plus alpha? Minus sin alpha. So minus sin. And what is minus sin 90 minus theta? Clear? And similarly, I can write 180 degree plus theta as clear? 180 degree minus minus theta. So you can say sine 180 degree plus theta as sine 180 minus. What is sine 180 minus theta? sin theta, So it will become sine minus theta. minus sin theta, ठीक है? And similarly, cos 180 plus theta is cos 180 minus minus theta. And what is cos 180 minus theta?
माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस का फर्क पड़ता है माइनस से? नहीं, सो माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो हमने सारे बैग्स को एक साथ देख लिया और अब हम ऑब्जर्वेशन को कंटेन करेंगे एक बड़े बैग में और इन पांचों को कभी दिमाग में नहीं रखेंगे, दिमाग में रखेंगे ये जो अब हम इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख रहे हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी स्टोरी थी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन कॉस बन जा रहा था और कॉस टैन कॉट बन रहा था और कॉट, और सेक कोसेक बन रहा था और कोसेक। ये कहां पे देख रहे थे आप? जब 90 था, 90 प्लस माइनस थीटा पे, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ये कन्वर्जन हो रही थी। लेकिन जहां पे आपने 180 देखा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या माइनस थीटा, आपने ऑब्जर्व क्या किया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन चीजें सेम रही, साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस्ट, टैन रिमेन टैन, कॉट रिमेन कॉट, सेक रिमेन सेक, कोसेक रिमेन कोसेक। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब 90 की स्टोरी हो तो अब इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या ऑब्जर्वेशन बनाएंगे कि अब दुनिया में आपको कोई भी एंगल हो, whatever angle they give you, you can break everything into the acute one with proper plus or minus. Now how to break that with the acute one? जब आप किसी चीज को 90 से डिवाइड करेंगे तभी ना रिमाइंडर होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा प्रेडिक्ट द साइन, SIGN, जो आप लोग पहले ही क्लास के पहले मोमेंट पे सीख लिए थे, राइट? सो व्हेनेवर यू सी एनी एंगल you can directly predict the sign whether it is plus minus 0 or 1 or minus 1, है ना? प्लस माइनस आप तुरंत प्रेडिक्ट कर दोगे by just looking at the angle, और उसके बाद आप कभी साइन के लिए परेशान नहीं होगे। ओके, आपने देखते ही क्वेश्चन का प्लस है कि माइनस है वो लिख दिया। सेकंड स्टेप होगा कि आप अपने एंगल को तुरंत 90 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 90 से। जब आप किसी एंगल को 90 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के तहत जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आपकी स्टोरी क्या बन जाएगी? 90 इंटू एन प्लस थीटा। एन वुड बी योर कोशेंट, एन वुड बी अ नेचुरल नंबर, एन वुड बी अ, और एन जो होगा या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो 90 इंटू ऑड प्लस थीटा, तो मतलब जब एन ऑड हुआ तो साइन क्या बन जाएगा और कॉस क्या बन जाएगा? टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। तो मतलब आपने पहली गो में साइन का हैंडल कर लिया, SIGN, साइन प्लस है कि माइनस है। उसके बाद सेकंड में आपने क्या हैंडल कर लिया कि वो क्या होगा, यही है। और अगर इवन है तो क्या कीजिएगा? साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, कॉट विल रिमेन कॉट, सेक विल रिमेन सेक, कोसेक विल रिमेन कोसेक। तो अंडरस्टूड द आइडिया? So whenever you see any angle, you have to find the trigonometric ratio. You can simply, the first step is just predict the sign, SIGN sign. The second step is break it into 90 into n plus theta. If n is even, sine will remain sine, cos will remain cos, tan will remain tan, sec will remain sec, cosec will remain cosec, cot will remain cot. And if it is odd, sine, cos, cos, sine चेंज हो जाएगा, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec. Clear? That is the whole story. So now it's very easy to tame all this stuff, right? तो आप सोच रहे होगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, राइट? ऐसे देख लो ना, साइन 180 प्लस थीटा, क्या आंसर था? माइनस साइन थीटा। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, साइन 180 प्लस थीटा, यू आर इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, क्या होगा? माइनस, लिख दिया माइनस। 180 प्लस थीटा, 90 इंटू 2 विच मेक्स इट 2 इज, तो साइन रिमेन्स। क्लियर?